گل بلوچی کا لڑکا تھا اور بلوچی کو سب لوگ جانتے تھے، کیونکہ بلوچی ریلوے ملازموں کو اور آس پاس کے رہنے والے سرکاری ملازموں کو روپیہ سود پر دیا کرتا تھا۔ گل بلوچی کا بیٹا تھا، مگر باپ اور بیٹے میں بہت فرق تھا۔ لاچی نے گل کو اکثر ریلوے اسٹیشن پر اور ریلوے کے کوارٹروں میں بھی آتے جاتے دیکھا تھا۔ گل کا قد تو اپنے باپ کی طرح پورا، اونچا، لامبا تھا، 6 فٹ کے قریب، لیکن گل اپنے باپ کی طرح چوڑا، چکلا اور فربا اندام نہ تھا، دبلا پتلا اور اکہرے جسم کا تھا۔ بلوچی کی بھویں گھنی تھیں اور بڑے بڑے گل مچھے تھے، لیکن گل کلین شیو تھا۔ بلوچی پرانے وزادار لوگوں کی طرح کلاہ، لنگی اور شلوار قمیص پہنتا تھا، لیکن گل پینٹ اور بشرٹ پہنتا تھا۔ بلوچی کی آنکھیں بڑی بڑی اور خوفناک تھیں، اور جب وہ آنکھیں سرخ کر کے اپنے قرضداروں کو ڈانٹتا، تم سود کا روپیہ کیوں نہیں لائے، تو وہ لوگ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ گل کی آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں، لیکن ہر وقت جیسے سپنا دیکھتی رہتی تھیں، اور بلوچی کہا کرتا تھا کہ یہ سب فرق اس لیے ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو FA تک پڑھا دیا ہے۔ پڑھ لکھ کر بچے کی صحت غارت ہو جاتی ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ لیکن گل اپنے باپ کا بہت کام کرتا تھا۔ اس کی میٹھی زبان اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر اکثر قرضدار باپ کے بجائے بیٹے سے ہی بزنس کرنا پسند کرتے تھے۔ بلوچی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ روپے کی وصولی کو اکثر اپنے بیٹے ہی کو بھیجا کرتا تھا، لیکن وصولی کے سلسلے میں بے حد محتاط تھا۔ ایک ایک پائی کا حساب اپنے بیٹے سے لیا کرتا تھا، اور اگر بیٹا 4-6 روپے سود کے چھوڑ دیتا تھا تو اس سے گھنٹوں جھگڑتا تھا، غراتا تھا، اور اگر بہت غصے میں ہوتا تھا تو گل کے 1-2 جڑ بھی دیتا تھا، اور گل ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سب سہ لیتا تھا۔ اس وقت گل کو اپنے سامنے آدھی رات کے وقت دیکھ کر لاچی کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ بولی، تم بلوچی کے بیٹے ہو؟ ہاں، میں گل ہوں۔ کیا میرے باپ یا ماں کو تمہارا کوئی قرضہ دینا ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں آئے ہو؟ گل چپ رہا۔ بولو، لاچی ذرا تیزی سے بولی۔ گل نے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہو۔ یہاں نہیں تو پھر کہاں؟ گل نے گھوم کر جدھر اشارہ کیا ادھر ریلوے کا ایک پرانا پل تھا۔ اسٹیشن یارڈ کے آؤٹر سگنلوں کے قریب ایک زنگ آلود کوہنا پل تھا جو اب استعمال نہ ہوتا تھا۔ کسی زمانے میں جب یارڈ چھوٹا تھا اور اسٹیشن گمنام سا تھا، اس زمانے میں یہ پل استعمال ہوتا تھا، لیکن اب تو یارڈ اس پل کے دونوں طرف پھیل گیا تھا، اور یہ پل جس کے نیچے سے اب یہ صرف 2 ریلوے لائنیں گزرتی تھیں، یارڈ کی درجنوں پھیلی ہوئی چمکتی ہوئی فولادی لائنوں کے درمیان ایک بڈھے ناکارہ پینشن خواہ ملازم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ عرصے سے ریلوے کے حکام نے اس پل کا جوڑ الگ کر کے اسے یہاں سے ہٹا دینے کے احکام جاری کر رکھے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اس پل کی ہستی کو بھول گئے ہیں، اسی لیے تو یہ پل ابھی وہیں کھڑا تھا، نہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ اس کی زنگ آلود بیچارگی پر کسی کو ترس نہ آتا تھا۔ گل نے کہا، اس پل پر چلیں گے۔ اس پل پر کیوں؟ لاچی نے کہا، یہیں بتا دو نا۔ میرے ساتھ جانے سے ڈرتی ہو؟ گل نے پوچھا۔ ڈرتی تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں، تم سے کیا ڈروں گی؟ اتنا کہہ کر لاچی گل کے ساتھ ہو لی۔ خیموں کے پیچھے ہوتے ہوئے وہ ریلوے کا فولادی جنگلہ الانگ کر یارڈ کے اندر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پرانے پل کی سیڑھیوں پر آ پہنچے۔ ذرا احتیاط سے، گل نے لاچی کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، بیچ بیچ سے سیڑھیاں غائب ہیں، اسی بہانے میرا بازو مت پکڑو۔ لاچی نے اپنا بازو گل سے چھڑاتے ہوئے کہا، میری بھی آنکھیں ہیں، میں بھی دیکھ سکتی ہوں، تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے آتی ہوں۔ گل نے فوراً لاچی کا بازو چھوڑ دیا اور آگے آگے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں پل کے اوپر پہنچ گئے۔ یہاں سے اسٹیشن یارڈ، اس کی ہری اور لال بتیاں، دور تک چمکتی ہوئی فولادی لائنیں سرمئی دھاریوں کی طرح ایک دوسرے کو قطع کرتی ہوئی دور فضا میں گم ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ادھر ریلوے اسٹیشن پر سناٹا تھا، ادھر خانہ بدوشوں کے خیموں سے پرے گل مہر کے درختوں کی ننگی سنسناتی ہوئی باہیں فضا میں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، گویا مصروف دعا، گویا منتظر فصل بہاراں۔ گل نے کہا، ان ننگی شاخوں پر کب پھول کھلیں گے؟ اے بلوچی کے بیٹے، لاچی بڑی نخوت سے بولی، تمہیں مجھ سے کیا کام؟ صاف صاف بولو، پھولوں کا جھانسا مجھے مت دو، میں ہر روز ایسی باتیں سنتی ہوں، تو میرے دل کا پھول ہے، تو میرے من کی رانی ہے، تو میری دل نواز جانی ہے، اور اگر میں یہ باتیں نہیں سنتی ہوں تو میں مادرزاد حرامزادی کتیاں ہوں، رنڈی اور گشتی ہوں۔ کیا سمجھے؟ مجھے تیرے باپ کا کوئی قرضہ نہیں دینا ہے۔ گل پل کے پرانے آہنی جنگلے پر جھک گیا، آہستہ سے بولا، میں یہاں ہر روز آتا ہوں، اسی وقت رات کے 2 بجے، جب یہاں کوئی نہیں ہوتا، اور تیرے خیمے کو تکا کرتا ہوں۔ لاچی مسکرا کے بولی، اب بات سمجھ میں آئی۔ گل نے کہا،
मुझे ये पुल बहुत पसंद है क्योंकि ये पुल कहीं जाता नहीं। लाची ने पूछा, कहीं जाता नहीं का क्या मतलब? क्या दूसरे पुल कहीं जाते हैं? सभी पुल अपनी जगह पर पड़े रहते हैं। गुल बोला, हाँ, लेकिन दूसरे पुलों के मुसाफिर तो कहीं जाते हैं ना। दूसरे पुल किसी को किसी से मिलाते हैं, लेकिन ये पुल किसी को किसी से नहीं मिलाता। न किसी सड़क को किसी सड़क से, न किसी शहर को किसी शहर से, न किसी घर को किसी घर से, न किसी इंसान को किसी इंसान से। छुक छुक करती हुई मालगाड़ी देर से आगे बढ़ती चली आ रही थी। अब तो वो इतनी करीब आ गई थी कि उसका सियाह इंजन मुहीब और भयानक और देवजात मालूम होने लगा था। दूसरे लम्हे में वो मालगाड़ी शोर मचाते हुए पुल के नीचे से गुजर रही थी और पुराना पुल जोर जोर से हिलने लगा और उसकी हर चूल खड़खड़ाने लगी। यकायक पुल इतने जोर से हिला कि लाची एक चीख मारकर गुल से लिपट गई। चंद लम्हों में गाड़ी गुजर गई। पुल फिर साकित हो गया। लाची गुल से अलग हो गई, लेकिन गुल का हाथ बहुत धीरे धीरे सरक कर लाची के हाथ से अलग हुआ। गुल ने मुस्कुरा के कहा, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं निकला। मेरा ख्याल था तुम औरत हो। लाची ने बड़ी हिकारत से गुल की तरफ देखा और बोली, अब इसके बाद तुम ये कह दो कि मैं खूबसूरत हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। तुम मुझ पर मरते हो और मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और इस जिंदगी में रखा ही क्या है तुम्हारे सिवा। खुदा के लिए वो सब बातें फौरन कह डालो जिन्हें सुनाने के लिए तुम मुझे इस पुल पर लाए थे। गुल चुप रहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबाए, लेकिन हिम्मत करके वो उन्हें पी गया। उसने एक आंसू भी नीचे नहीं गिरने दिया। फिर वो आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें ये पुल दिखाने लाया था, ये पुल जो कहीं जाता नहीं, मेरी उम्मीदों की तरह। पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए बात को घुमा फिरा के कहोगे, लेकिन मतलब वही है। दूसरों की तरह तुम भी मेरी इज्जत लेना चाहते हो। आखिर क्यों ना लो, मैं एक खाना बदोश लड़की हूँ। गुल ने दांतों तले अपना निचला होंठ रख लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। वो बोली, चलो अब इश्क हो चुका, मुझे खेमे तक छोड़ाओ। हाँ, मगर तुमने ये बताया ही नहीं कि इश्कबाजी करने के मुझे कितने पैसे दोगे। गुल तेजी से घूमा। उसका हाथ लाची को मारने के लिए उठ गया था, मगर दूसरे ही लम्हे में उसने अपने आप पर काबू पा लिया और लाची की तरफ पुश्त करके वो तेजी से पुराने पुल की सीढ़ियां उतर के चला गया। वो तेजी से रेल की पटरियां फलांगता हुआ अपने घर को जा रहा था। लाची वहीं पुल पर खड़ी उसे देखती रही और देर तक हंसती रही। जब वो उसकी नज़रों से गायब हो गया तो वो धीरे धीरे उस पुल से नीचे उतरी और अपनी कमर को रक्स के अंदाज में झुलाती हुई अपने खेमे को चली गई। दूसरे दिन लाची ने रूशी से मशवरा किया। रूशी की उम्र 20 साल से ऊपर होगी। उसका हुस्न बुझता जा रहा था, जिसे वो सुर्खी गाजे से हर रोज़ जिला देती थी। रूशी खाना बदोश लड़कियों में से सबसे चंट और खर्राट और तजर्बेकार औरत थी। उसके गाहक सबसे ज़्यादा अमीर होते थे और उसके कपड़े भी सबसे ज़्यादा कीमती होते थे। और उसका शौहर जुमारा दिन रात शराब पीता था और रूशी की आमदनी का बेशतर हिस्सा शराब और जुए में सर्फ करता था और रूशी को महीने में 2-4 बार पीट दिया करता था। रूशी इंतहाई सआदतमंदी से ये मार खा लिया करती थी, क्योंकि उसका एतकाद था कि इस दुनिया में हर शौहर को अपनी बीवी को पीटने का हक हासिल है। मार खा खा कर वो इस पिटाई को भी पसंद करने लगी थी, बल्कि जब ज़्यादा दिन हो जाते तो रूशी की खाल खुद उस पिटाई के लिए तिलमिलाने लगती थी। उसके सारे जिस्म में खारिश सी होने लगती थी और वो किसी न किसी बहाने अपने शौहर से उलझ पड़ती और फिर पिट कर अपने खाविंद के पांव दबाने लगती। उसे अपने खाविंद से बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत तो उसे अपने गाहकों से भी हो जाती थी, लेकिन वो तो बस घड़ी दो घड़ी की मोहब्बत होती थी। लेकिन खाविंद तो खाविंद है और गाहक तो सिर्फ गाहक हैं। दुकान से सौदा तो हर कोई खरीदता है, लेकिन दुकान का मालिक तो सिर्फ एक ही होता है ना। रूशी बहुत समझदार औरत थी। वो जिंदगी से बड़ी खूबसूरती से मफाहमत करना जानती थी। दरअसल ये दुनिया ऐसी ही समझदार औरतों और मर्दों पर कायम है, वरना कब की खत्म हो गई होती। इसीलिए रूशी से लाची ने मशवरा करना मुनासिब समझा। रूशी ने बात सुन के कहा, 350 रुपये क्या चीज़ है तेरे लिए, तू हाँ कर, मैं अभी तुझे 350 का गाहक दिला देती हूँ। लेकिन मुझे गाहक नहीं चाहिए। तो गाहक के बगैर 350 कहाँ से मिलेंगे? रूशी हैरत से बोली, तू रुपया भी चाहती है और धंधा भी नहीं करेगी, ऐसा कैसे चलेगा? अगर ऐसा नहीं चलेगा तो फिर मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। लाची एकदम खफा होकर रूशी के पास से पलट आई और रूशी देर तक लाची को जाते हुए देखकर कुछ सोचती रही। फिर वो अपने दिल ही दिल में हंसी, कैसी पगली लड़की है, इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। इसके बाद वो अपनी ऐनकों के ढेर को उलट पलट करने लगी। एक बाबू उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। रूशी ने निगाह उठा के देखा और मुस्कुरा दी। बाबू, ऐनक चाहिए? बाबू बोला, ऐनक तो मेरी आंखों पर मौजूद है, फिर क्या चाहिए? छल्ला, अंगूठी, मनके, नगीने, जो लेना हो ले लो। रूशी हंसकर बोली, मुझे एक मोती चाहिए। बाबू ने आंख मारकर उससे कहा।
रूशी से हटकर लाची माधव की दुकान पर आई और सेबों की टोकरी से एक सेब उठाकर खाने लगी। माधव जरा सा मुस्कुरा दिया क्योंकि उसकी दुकान पर उस वक्त 3 गाहक खड़े थे और वो सौदा बेच रहा था। जब गाहक चले गए तो लाची ने 3/4 सेब खा लिया था। माधव ने टोकरी से एक और सेब उठाया और लाची को पेश किया। लाची ने पहला सेब नाली में फेंक दिया और माधव का पेश किया हुआ सेब खाने लगी। सेब खाते खाते बोली, माधव तुम मुझे बहुत चाहते हो। माधव जवाब में खिलखिला के हंस पड़ा, फिर उसने शर्म से मुंह फेर लिया। लाची को माधव की अदा बहुत पसंद आई। वो बोली, बताओ माधव तुम मुझे कितना पसंद करते हो। माधव शर्माते हुए बोला, अपनी रोजी से ज्यादा, अपनी दुकान से ज्यादा, अपने रिज़्क से भी ज्यादा। जो मैं कहूंगी उसे पूरा करोगे? लाची बोली। माधव के दिल में जाने कहां से दिलेरी आ गई, एकदम बोल उठा, तुम चाहो तो मैं दुकान छोड़ दूं, ये सारे फल नाली में फेंक दूं, तुम चाहो तो मैं गाड़ी के आगे लेट जाऊं, तुम चाहो तो बस। लाची ने कता कलाम करते हुए कहा, मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम मेरे लिए कहीं से 350 रुपए का बंदोबस्त कर दो। 350? माधव एकदम बुझ सा गया। 350 कहाँ से लाऊंगा? मेरी तो सारी पूंजी ये फल हैं। 60-70 के ये फल होंगे, 50-60 के मेरे घर में होंगे। मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ से लाओगे, मगर तुम मेरे लिए लाओगे, नहीं तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। लाची एक अदा से खफा होके बोली। नहीं। माधव घिघिया के बोला, लाची इतनी खफा ना हो, देख मेरी तरफ देख ले, बस एक नज़र से देख ले। अच्छा देखती हूँ। लाची ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चमकाईं और माधव के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। एक लम्हे के लिए वो जैसे सर से पांव तक पिघल गया। आहिस्ता से बोला, देख तू आज शाम को आना, मैं कहीं से बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा कहकर लाची माधव की दुकान से चली गई। उसके सर से बोझ उतर गया था। उस दिन उसने यार्ड से सरकारी कोयला फिर चुराया और उसे हलवाई के यहाँ बेचकर 1.5 रुपया वसूल किया। उस 1.5 रुपये को हासिल करने के लिए उसे यार्ड के 3 चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद उसने रेलवे क्वार्टरों के कई चक्कर लगा डाले। आखिर वो अली भाई टिकट चेकर के पिछवाड़े से एक पला हुआ मुर्ख चुराने में कामयाब हो गई। उसका ख्याल था कि उस मुर्ख के उसे 3.5 रुपये ज़रूर मिल जाएंगे, मगर कसाई न माना। यह हराम का माल है, मगर पला हुआ है, मैं इसके 350 लूँगी, मैं 1.5 से ज़्यादा ना दूंगा। 1.5 देकर तुम इसे 5 में बेचोगे, कुछ तो शर्म करो। मैं गरीब खाना बदोश लड़की हूँ, मैं एक गरीब कसाई हूँ, मुझे 350 का कर्जा चुकाना है। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बीवियाँ हैं, चौथी की फिक्र कब करोगे? लाची ने मजाक किया। जब तुम हाँ कर दोगी। लाची एकदम संजीदा हो गई, बोली, अच्छा चलो 3 रुपए दे दो, 1.25, अच्छा 2.5 दे दो, 2 लेने हो तो ले जाओ, वरना इनसे भी जाओगी। उधर देखो। सामने से पुलिस का संतरी चला आ रहा था। लाची डर गई। उसने जल्दी से मूर्ख कसाई के हवाले कर दिया और उसे 2 रुपए लेकर चलती बनी। अब तक उसकी जेब में 3.5 रुपए आ चुके थे, मगर इस तरह से क्या होगा? लाची चंद लम्हों के लिए फिक्र में डूब गई। फिर उसके दिल में वादे का ख्याल आया और उसकी बशाशत लौट आई और वो कसाई के हाथ से लौट के सारा बाजार गुजर के वापस बस के अड्डे पर आ गई। भीख मांगने के लिए बस के अड्डे पर सिर्फ 2 मछली बेचने वालियां खड़ी थीं। मार्केट में मछलियां बेच के आई थीं और अब खाली टोकरियां लिए हंस हंस के एक दूसरे से बात कर रही थीं। जब लाची ने दस्ते सवाल आगे बढ़ाया तो उनमें से एक झिड़क कर बोली, शर्म नहीं आती मुस्टंडी, जवान जहान लुठासी होकर भीख मांगती है, जा कोई घर कर ले। तेरे घर चली जाऊं? लाची ने चमक कर जवाब दिया। मछली वाली उसे मारने के लिए दौड़ी। लाची हंसते हुए भाग गई। थोड़ी देर में वो दोनों मछली वालियां एक बस में सवार होकर चली गईं और अड्डा फिर खाली हो गया। लाची फिर अड्डे पर वापस आ गई। अब के धुनिया भिकारन, बूढ़ी और अंधी अड्डे पर खड़ी खाली अड्डे से भीख मांग रही थी। लाची ने उसे समझाया, अड्डा खाली है, तू किससे भीख मांगती है? तुम कौन हो? धुनिया भिकारन अपनी कड़वी करारी आवाज में बोली, मैं भी तेरी तरह एक भीख मांगने वाली हूँ। लाची ये कहकर जोर से हंसी। जवान हंसी है तेरी। धुनिया गुस्से से बोली, लानत हो तुझ पर, क्यों मुझ गरीब भिकारन की रोजी तबाह कर रही है? मैं क्या कह रही हूँ तुझे? लाची हैरत से बोली, तेरे होते हुए मुझे कौन भीख देगा? दुनिया बहुत अफसुर्दगी से बोली, कैसा ज़माना आया है, लोग भीख देते हैं तो अच्छी सूरत देखकर, गरीब अंधी बुढ़ी को कोई नहीं पूछता। ये बिल्कुल सच था। अगले 3-4 घंटों में लाची ने भीख मांग मांग कर 2.5 रुपए कमाए, लेकिन अंधी बुढ़ी दुनिया के पास मुश्किल से 10 पैसे जमा हुए होंगे। वो भी उसे सिर्फ औरतों ने रहम खा के दिए थे। लाची गौर से देखती रही। किसी जवान मर्द ने उसे 1 पैसा नहीं दिया। सब लाची को घूरते थे। लाची के दिल में एक अजीब सी मुसर्रत की लहर आई। वो पलट के सामने पान वाले की दुकान पर चली गई और उससे 2 पैसे का पान खा के आईने में अपनी सूरत देखने लगी। थोड़ी देर में पान की दुकान पर भीड़ लग गई।
2 पैसे का घोड़ा मार का बीड़ी देना, 1 आने की सुल्तान साहब बीड़ी, कॉन्डर का आधा पैकेट, वही सादा काला कांडी लौंग सुपारी। लाची ने अपने घाघरे के नेफे से 2 पैसे निकाल के पान वाले को देने चाहे। पान वाले ने मुस्कुरा के सर हिला दिया, बोला, जानी बस तू इधर मेरी दुकान पे आके कभी कभार 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाया कर, अपने तो पान के पैसे यूं ही वसूल हो जाते हैं। हश सुअर की औलाद। लाची ने पान वाले को गाली दी, फिर उसने जोर से पान की पीक नाली में गिरा दी और अपना नीली छींट का घेरेदार घाघरा झुलाती हुई माधव की दुकान पर चली गई, क्योंकि अब शाम हो चली थी। जब लाची दुकान पर पहुंची तो माधव अपनी दुकान बंद कर रहा था। वो करीब खड़ी खड़ी उसे दुकान बंद करते देखती रही। माधव तो इतनी जल्दी कभी दुकान बंद न करता था। रात के 11 बजे, 11:30 बजे पुलिस की राउंड आने से पहले कहीं दुकान बंद करने पर मजबूर होता था। आज उसे क्या हो गया? यकायक लाची के दिल में ख्याल आया, ये कमबख्त मेरे आने से पहले ही दुकान बंद करके भाग जाना चाहता है। अच्छा हुआ मैंने इसे भागने से पहले पकड़ लिया। लाची वहीं माधव के पीछे खड़ी रही। जब माधव दुकान बंद करके चाबियों का गुच्छा जेब में डालते हुए पलटा तो उसने लाची को अपने पीछे खड़ा पाया। वो एकदम चौंक गया, कुछ झेंप गया। लाची बोली, क्यों भाग रहे थे माधव? नहीं, माधव इनकार करते हुए बोला, मैं तो दुकान बंद कर रहा था और दुकान बंद करके तेरी राह देखता। पैसे लाए? आहिस्ता बोल, माधव ने इधर उधर देखते हुए कहा, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो क्या करेगा? लाची फिर बेखौफी से बोली, तू नहीं समझती, इधर आ, टैक्सी में बैठ, तुझे बताता हूँ। लाची ने मुड़ के देखा। चंद कदम के फासले पर एक टैक्सी खड़ी थी। लाची माधव के साथ टैक्सी में बैठ गई। ड्राइवर टैक्सी घुमाकर स्टेशन के अड्डे से बाहर ले गया। बाहर सड़क पर जाकर टैक्सी एक तरफ करके रोक दी गई। यहाँ पर दरख्त का घना साया था और एक पब्लिक टेलीफोन बूथ था। यहाँ टैक्सी रुकवा के माधव ने अपनी जेब से नोट निकाले और उन्हें लाची के हाथ में थमाते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से 100 रुपया हुआ है, गिन ले। 10 के, 5 के, 2 के, 1 के नोट थे, मैले और मुड़े हुए, पसीने और बदबू के मारे हुए। कुछ नकदी थी, 58, 54, 52, 51, मगर लाची ने उन्हें गिन के कहा, ये तो सिर्फ 100 हैं, यही मेरी सारी पूंजी है, इसे रख ले। लाची ने रुपए रख लिए। माधव के सब्जी माइल चिकने होठों पर राल का लुआब चमकने लगा। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कांपती हुई उंगलियां लाची के हाथ को छूने लगीं और माधव आहिस्ता से कहने लगा, अब कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? लाची ने पूछा। कहीं भी, सैर के लिए चलेंगे, माधव कांपती आवाज में बोला और उसकी तरसती हुई उंगलियां लाची के हाथ की उंगलियों से कुछ कहने लगीं। यकायक लाची के बदन में एक झुरझुरी सी आ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई केचुआ या गंदी नाली का कोई लिजलिजा पिलपिला सा कीड़ा उसके जिस्म पर रेंग रहा हो। उसने 100 रुपए के नोट जोर से माधव के मुंह पर मारे और जल्दी से टैक्सी का पट खोलकर बाहर निकल आई। उसकी आंखों की गहरी सब्ज झीलों में गुस्से की लहरें उठ रही थीं। कमीने कुत्ते! लाची ने एक पत्थर उठाया। ड्राइवर ने जल्दी से टैक्सी स्टार्ट कर दी और माधव को लेकर भाग गया। पत्थर एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा टैक्सी के मडगार्ड को छूते हुए गुजर गए। शुक्र है टैक्सी का कोई शीशा नहीं टूटा। टैक्सी ड्राइवर ने शुक्र अदा किया, वरना लाची के गुस्से से खुदा बचाए। गुस्से में यूं भी निशाना चूक जाता है। लाची ने चौथा पत्थर उठा लिया था, मगर टैक्सी गायब हो चुकी थी और पत्थर उसके हाथ में था। लाची ने एक लम्हे के लिए पत्थर की तरफ देखा, फिर खाली सड़क को देखा, फिर उसने जोर से पत्थर सड़क पर फेंक दिया और बेबस होकर रोने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो क्या समझी थी माधव को, और माधव क्या निकला। पब्लिक टेलीफोन के करीब रुककर उसके दिल में एक लहजे के लिए ख्याल आया कि वो क्यों ना बूथ के अंदर जाकर खुदा को टेलीफोन करे और उससे 350 रुपये मांग ले। क्या खुदा तक ये टेलीफोन नहीं पहुंचता? क्यों नहीं पहुंचता? आखिर क्यों खुदा उसे कहीं से 350 रुपये नहीं देता? कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं। आखिर क्यों इस दुनिया में कोई एक लड़की की इज्जत लिए बगैर उसे 350 रुपये तक देने को तैयार नहीं? डार्लिंग, यहाँ किसे टेलीफोन के लिए रुकी हो? आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। खूबसूरत आसमानी रंग की प्लाई मथ में एक नौजवान गाड़ी चलाता हुआ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था। लाची ने एक पत्थर उठाया। कार पेट्रोल का गुबार छोड़ते हुए जूम से भाग गई। शाम को जब लाची टीले से घूम के अपने खेमे को जाने लगी तो उसके बाप ने रोज की तरह दस्ते सवाल दराज किया। लाची ने उसकी तरफ घूर के देखा और पलट के चलने लगी। रिग्गी ने आगे बढ़ के उसका रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, कहाँ जाती है? मेरे पैसे देती जा। लाची ने बिजली की तरह तड़प कर अपना हाथ रिग्गी से छुड़ा लिया और उल्टे हाथ से ऐसे जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया कि होठों से खून निकल आया।
रिग्गी हैरान व शशदर खड़ा रह गया। आहिस्ता से उसने अपने होठों से लहू साफ किया और फिर अपनी हथेली को गौर से देखने लगा, जहां तरोताज़ा और सुर्ख लहू की एक चमकती हुई लकीर हथेली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींची हुई थी। लाची बोली, अगर तुम मेरे बाप हो तो आइंदा जब तक मैं दमारू का पैसा न चुका दूं, कभी मुझसे एक पैसा भी न तलब करना। रिग्गी ने गौर से अपने खून को देखते हुए कहा, 350 रुपये तुम अकेली कैसे चुकाओगी? तुम देखते जाओ, लाची एक फैसला कुन अंदाज में बोली। रिग्गी ने बहुत अफसुर्दगी से कहा, तुम्हारा जिस्म औरत का है, दिल मर्द का है, बस यही सोचकर अफसोस होता है। क्यों? लाची ने रुक कर पूछा। रिग्गी बोला, जिंदगी मुख्तसर है, जवानी उससे भी मुख्तसर, हुस्न उससे भी मुख्तसर है। इसलिए मेरा बाप कहता था, गाओ बजाओ दफ बजाओ, जहां तक हो सके काम ना करो और हमेशा चलते चलो। किसी एक जगह बैठ जाने से आदमी शाख में लगे हुए पत्ते की तरह एक रोज सड़ कर गिर जाता है। उसने लहू को अपनी मैली आस्तीन से पोंछ दिया। लाची ने कहा, मुझे खेमा नहीं चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। एक आह के साथ, एक अजीब बेकरारी के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ उसके दिल की गहराइयों से ये अल्फाज निकले। वो अपने एहसास की शिद्दत से खुद ही घबरा गई और जल्दी से वहां से चली गई। रिग्गी उसे देखता रह गया। दमारू अपने खेमे के बाहर चटाई बिछाए पी रहा था। रूशी और जामा उसकी बगल में थी। लाची ने जाते ही 6 रुपए निकाल के उसकी हथेली पर रखे। दमारू रुपयों को लेकर हंसने लगा। इस तरह कितनी मुद्दत में कर्जा चुकाओगी? उसी मुद्दत में चुकाऊंगी जिसका वादा किया है। तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारे फूल ऐसे जिस्म की मुझे फिक्र न होगी तो और किसे होगी? दमारू हंसा। उसके साथ लड़कियां भी हंसी। लाची चुप रही। दमारू ने दरख्तों की कतार को गौर से देखा, उनकी नंगी शाखों को घूरा, फिर निगाहें हटाकर बोला, दरख्त भी इंतजार करते हैं, वो भी मेरे दिल की तरह इंतजार करते हैं। बहार अभी बहुत दूर है। लाची इत्मीनान से अपनी उंगलियां नचाते हुए बोली और लचक कर वहां से चल दी और दमारू अपना दिल महसूस कर रह गया। लाची की मस्ताना खिरामी देख के जामा और रूशी के दिल में रश्क व हसद का शोला सा भड़क उठा। जामा ने दांत पीस कर कहा, मालजादी बड़ी पारसा बनती है। दमारू ने धीरे धीरे घूंट पीते हुए कहा, एक जरा ठहर जाओ, तुम देखती जाओ क्या होता है। आज लाची की आंखों में नींद नहीं थी। खेमे की दीवारें कैद खाने की दीवारों की तरह चारों तरफ से उसके करीब सरकती हुई, उसका गला घोंटती हुई मालूम होती थी। दूर घड़ियाल ने 12 बजाए, 1 बजाया, 2 बजाए, लेकिन आंखों में नींद फिर भी ना आई। तो लाची घबराकर उठ बैठी और खेमे के पीछे से बाहर निकल गई। बाहर जाके उसने आंखें मली, एक लंबी सांस निकाली। यकायक उसकी निगाह दूर सामने के पुराने पुल पर पड़ी, जिसकी पुष्ट पर आउटर सिग्नल की हरी और लाल बत्तियां रोशन थीं। पुल के ऊपर एक साया खड़ा था और इतना साकित और जामिद जैसे वो खुद भी पुल पर इस्तादा एक सिग्नल हो। गुल? लाची के सारे जिस्म में बेख्तियार एक अंगड़ाई आई और वो सर से पांव तक नशे में झूम गई। एक अजीब फतहमंदी और गुरूर के एहसास से उसका रुआं रुआं सरशार हो गया। पहले उसके जी में आया कि वो वापस खेमे में चली जाए, लेकिन उसके कदम पलट ना सके और वहीं खड़ी रहकर उस साये को देखने लगी जो अब तक जामिदो साकित अपनी जगह पर खड़ा था। फिर वो यकायक तेज तेज कदमों से लाइनें फलांगती हुई पुराने पुल की तरफ चली गई। मेरा ख्याल था तुम जरूर आओगी, गुल ने आहिस्ता से उस वक्त कहा जब लाची उसके करीब आकर पुल पर झुक गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो झुक गया था। हुँ, लाची ने बड़ी नखवत से कहा, मैं तो महज इसलिए चली आई कि खेमे में बड़ी गर्मी थी। गुल चुप हो गया। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। यार्ड बिल्कुल खामोश था। दूर कहीं किसी जाने वाली गाड़ी की छुक छुक सुनाई दे रही थी और आहिस्ता आहिस्ता फिजा में गुम होती जा रही थी। सुना है तुम्हें 350 रुपये चाहिए? 6 कम 350। गुल बहुत देर तक चुप रहा। मैं तुम्हें कल नहीं तो परसों कहीं से ला दूंगा। कहाँ से लाओगे? मेरा बाप सूद पर पैसा देता है ना, उससे मांग लूंगा। क्या कहोगे? झूठ तो नहीं बोलूंगा, सच सच कह दूंगा। सच ला दोगे? कल नहीं तो परसों। परसों कहाँ पर मिलोगे? इसी पुल पर। किस वक्त? इसी वक्त। और अपनी टैक्सी कहाँ खड़ी करोगे? गुल हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। बात उसकी समझ में ना आई थी। कौन सी टैक्सी? उसने बहुत हैरत से पूछा। वही टैक्सी जिसमें तुम रुपया अदा करके मुझे कहीं ले जाओगे। गुल की समझ में अब बात आ गई। लाची ने बहुत तलखी से कहा, मेरे सामने ये आह ना भरो। मैं जब से जवान हुई हूँ दिन भर यही आहें सुनती हूँ। बस अड्डे पर, स्टेशन के यार्ड में, कसाईयों की दुकानों पर, गली में, बाजार में, जिधर से गुजरती हूँ बिल्कुल इसी तरह आहें सुनती हूँ। क्या तुमने उस कुत्ते को देखा है जो हड्डी देखते ही जबान बाहर निकालने लगता है? सभी मर्द एक से नहीं होते, सभी कुत्ते एक से होते हैं। गुल ने लाची का बाजू जोर से पकड़ लिया
اس کا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا۔ وہ لاچی کے بازو کو اپنی انگلیوں میں زور سے مسلتے ہوئے بولا، خدا کی قسم بہت خبیث عورت ہو، خبیث اور جاہل، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ پھر اس پل پر کیوں آئے ہو؟ لاچی نے یکایک بہت نرم اور کمزور آواز میں کہا۔ گل نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ لاچی کے بازو سے ہٹا لیا۔ لاچی نے اپنے بازو کو دیکھ کے گل سے کہا، دیکھتے نہیں ہو تم نے اپنے ناخن اس میں گڑو دیے ہیں، جنگلی۔ واقعی لاچی کے سنہری سندلی بازوؤں پر ناخنوں کے گڑ جانے سے سرخ سرخ نشان پڑ گئے تھے اور ان میں سے خون جھلک رہا تھا۔ اس خون کو دیکھ کر گل بےتاب ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ لاچی کو اپنے بازوؤں میں اس طرح لے کہ لاچی کی سانس رک جائے، مگر وہ لاچی کی طرف بڑھتا بڑھتا رک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور انہیں زور زور سے جھٹکے دیے، پھر پلٹ کر کل کی طرح لاچی سے کچھ کہے بغیر پل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ لاچی ہنسی، پہلے آہستہ سے ہنسی، پھر زور زور سے ہنسی، پھر بالکل ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھاگتے بھاگتے گل کو ایسا محسوس ہوا جیسے لاچی اپنے جسم اور روح کی حقارت آمیز ہنسی سے اس پر وار کر رہی ہو۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا ریل کی پٹریاں پھلانگتا ہوا یارڈ کے دوسری جانب گم ہو گیا، جہاں ایک مال گاڑی کتنے دنوں سے کھڑی گھاس کے گٹھے لادے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ یکایک لاچی ہنستے ہنستے چپ ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا وہ بازو اوپر اٹھایا جس پر گل کے ناخنوں کے سرخ سرخ نشان تھے، یہ ہلال کے نشان جن میں کسی کی امیدوں کا خون تھا۔ لاچی کو یکایک بہت پسند آ گئے۔ اس نے جھک کر ان نشانوں کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا اور بولی، میرے زخم، میرے پیارے زخم، میرے ننھے منھے نازک ناتواں سے زخم۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے میں جا کے بہت اطمینان سے سو گئی، بے خوف و خطر۔ ایسی گہری نیند میں مستغرق سوئی کہ جب صبح اٹھی تو دھوپ خیمے کے اندر آ چکی تھی اور چچا مامن چٹائیاں بن رہا تھا اور اس کی ماں خیمے کے باہر روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ دوسرے دن لاچی نے رات کے 2 بجے تک گل کا انتظار کیا، لیکن اسے پل پر کسی کا سایہ نظر نہ آیا۔ تیسرے دن اس نے پھر انتظار کیا، لیکن گل پھر کہیں اسے دکھائی نہ دیا۔ 3-4 دن اور انتظار کرنے کے بعد لاچی نے بھی اس واقعے کو اپنے دل سے بھلا دیا۔ اس کے زخم اب بھر گئے تھے اور ان پر بھورے بھورے کھرنڈ آ گئے تھے۔ لاچی نے اپنے ناخنوں سے دھیرے دھیرے ان کھرنڈوں کو صاف کیا۔ اب اندر سے سفید چکنی اور لال جلد نکل آئی تھی، جسے دیکھ کر اس کے دل میں پھر انہیں چومنے کی خواہش بیدار نہ ہوئی، بلکہ ایک طرح کی نفرت اور کراہت سے اس کا دل بھر گیا۔ اور جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا یہ نشان کیسے ہیں تو اس نے بڑی نفرت سے جواب دیا، ایک کتے کے دانتوں کے نشان ہیں۔ اس کی ماں نے اسے ایک لمحے کے لیے غور سے دیکھا اور چپ ہو کر رہ گئی۔ اگلے 20 دنوں میں لاچی نے دمارو کے 70 روپے ادا کر دیے، بھیک مانگ کے اور چوری کر کے، مگر اب دن پر دن اس کے لیے یارڈ سے کوئلہ چرانا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور مرغیاں ہر روز تو پکڑی نہیں جا سکتی۔ ریلوے کوارٹروں والے بھی ہوشیار ہو گئے تھے، کیونکہ لاچی کا قصہ سارے علاقے میں مشہور ہو چکا تھا۔ جب کبھی وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف سے گزرتی تو حمیدہ اس کی طرف گھور کے اپنے ساتھیوں سے کہتا، وہ 350 کی لونڈیا جا رہی ہے۔ لاچی اگر اس پر بھی چپ رہتی تو کہتا، ہم سے کہو تو ہم 350 کیا 3500 اس کے قدموں میں لا کر پھینک دیں گے۔ اگر اس پر بھی وہ خاموش رہتی تو وہ کہتا، ہماری اگر سنے تو ہم 3500 کیا 3.5 لاکھ اسے دلوا دیں، چاہے کسی فلم میں ہیروئن بنا دیں، مگر اپنی ایک شرط ہے۔ اس پر تنگ آ کے لاچی اس کی طرف دیکھ کے تھوک دیتی۔ اس پر ٹیکسی ڈرائیوروں کا گروہ ٹھٹا مار کے ہنس پڑتا اور لاچی غصے میں بھری ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے بھاگ جاتی۔ اب اس نے ٹیکسی سٹینڈ پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنا بند کر دیا۔ کوئی 1-2 ہوتے تو ان کی باتوں کا جواب دے دیتی، مگر اب معاملہ اس قدر صاف تھا، شرط اس قدر کھلی ہوئی تھی کہ ہر کس و ناکس اس کا مذاق اڑانے پر تل گیا تھا۔ جس سطح کی زندگی لاچی گزارنے پر مجبور تھی، اس سطح پر اتر کر کوئی شخص یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ لاچی اپنے آپ کو بیچنے کے لیے اتنی شدت سے انکار کرے گی۔ ارے صاحب، یہ خانہ بدوش لڑکیاں، نہ ان کا گھر نہ گھاٹ، نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا، کس برتے پر یہ کمبخت اتراتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لاچی نے دمارو سے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، سارے علاقے کی غیرت کو چیلنج کیا ہے۔ ہر وہ شخص بھی جسے اس سے پہلے لاچی میں کسی طرح کی دلچسپی نہ تھی، اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح لاچی اپنی شرط ہار جائے، اپنی عزت کھو دے۔ دل کی بات زبان پر نہ آتی تھی، لیکن اکثریت کی عزت کا تقاضا یہی تھا کہ اس ذلیل خانہ بدوش لڑکی کی عزت چھن جائے۔ یہ حرامزادی کیا کھا کے ہمارے گھر کی عورتوں کی برابری کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے اب بہت سے لوگ جو اس سے پہلے اس سے مذاق کیا کرتے تھے اور اپنا دل خوش کر کے اسے 2-4 آنے دیا کرتے تھے، اب دیدہ و دانستہ اسے بھیک نہ دیتے تھے۔ کئی تو صاف صاف اور برملا اس سے کہہ دیتے، بہار کے بعد دیں گے۔
वो दिन तो आने दो, फिर 2 आने क्या 200 रुपए ले लेना। लाची खूब जली कटी सुनाती, वो खूब मजा लेते, लेकिन एक पाइप भीख की उसे न देते। ये इलाके की इज्जत का सवाल था, और इज्जत सबकी साझी होती है ना जी। आखिर एक घर की औरत में और एक गली गली भीख मांगने वाली, टोकरियां बुन बुन कर बेचने वाली खाना बदोश लड़की की इज्जत में कुछ फर्क तो होना चाहिए। एक रोज लाची कोयला चुराते चुराते फिर ऐन मौके पर पकड़ ली गई। उन दिनों यार्ड के संतरी दिन में बहुत चक्कर लगाते थे और खास तौर पर लाची पर निगाह रखते थे, इसलिए लाची ने दिन को कोयला चुराना छोड़ दिया था। अब वो रात की तारीकी में कोयले के अंबार पर छापा मारती थी। यहाँ सैकड़ों मन कोयला रखा था। चंद शेर उसमें से अगर कोई चुरा भी लेगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। लाची जिस माहौल में पली थी, उस माहौल में इतनी सी चोरी को वो चोरी न समझती थी। वो तो दिन दहाड़े कोयला चुरा लेती, मगर क्या करे, पुलिस के संतरियों की आंखों में धूल झोंक के कैसे कोयले के ढेर तक पहुंच जाए। रसिकलाल स्टेशन मास्टर ने तंग आके हुक्म दिया था कि अगर लाची कभी रेल के यार्ड में भी दाखिल हो तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। रात की तारीकी में आज जब लाची कोयला चुराने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब उसने बहुत सा कोयला अपने दामन में भर लिया तो किसी ने आके उसे पीछे से पकड़ लिया। लाची के मुंह से एक चीख निकली। उसने देखा यार्ड का संतरी दत्तू अपने लंबे लंबे दांत निकोसे उस पर हंस रहा था। छोड़ दे मुझे, चल स्टेशन मास्टर के पास, बख्श दे मुझे, लाची ने बड़ी लजाजत से कहा। अब मैं कोयला ना चुराऊंगी, चलती है कि मैं लाज जमाऊं। दत्तू ने राइफल का एक टहोका देते हुए कहा। अरे है क्या, चंद शेर तो कोयला है, सब खाना बदोश लड़कियां ले जाती हैं, तेरे रेलवे के क्वार्टरों के सारे नौकर ले जाते हैं। मैंने ले लिया तो क्या गजब किया, खुद स्टेशन मास्टर के घर में ये कोयला जलता है, मैं जानती नहीं हूँ क्या? मैंने कौन सा ऐसा गजब कर दिया है बे दत्तू? मैं कुछ नहीं जानता, तुझे स्टेशन मास्टर के पास चलना होगा। ले, मैं तेरा कोयला यहीं फेंके देती हूँ। लाची ने कोयलों से भरा दामन वहीं ढेर पर उलट दिया। अब तो मुझे जाने दे। दत्तू ने खौफ दिलाने के लिए राइफल सीधी की, बोला अगर नहीं चलेगी तो अभी गोली मार दूंगा। धीरे धीरे सर झुकाए लाची दत्तू के साथ चलने लगी। उस वक्त रात का 1:30 बजा था। 3 बजे गवर्नर साहब का स्पेशल स्टेशन से गुजरने वाला था, इसलिए रसिकलाल अभी तक घर न गया था। स्टेशन का सारा स्टाफ चौकस था और अपनी अपनी ड्यूटी पर कील कांटे से दुरुस्त होकर खड़ा था। जब दत्तू लाची को लेकर रसिकलाल के कमरे में पहुंचा तो उस वक्त कमरे में रसिकलाल के सिवा और कोई न था। वो टेलीफोन पर बैठा जंक्शन से गवर्नर साहब की स्पेशल के बारे में हिदायत हासिल कर रहा था। उसने एक नज़र दत्तू राम और लाची की तरफ देखा जो आज सहमी सहमी सी खड़ी एक कोने से लगी थी। उसने हाथ के इशारे से दत्तू को निकल जाने के लिए कहा। दत्तू कमरे से बाहर निकल के खड़ा हो गया। जब रसिकलाल टेलीफोन कर चुका तो वो धीरे से लाची की तरफ मुड़ा और उससे बहुत संजीदा लहजे में कहने लगा, इधर आओ। लाची डरते डरते उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी बेबसी में एक अजीब सी कशिश थी। रसिकलाल का दिल पिघल गया। उसने बहुत नरमी से कहा, तू तो बहुत अच्छी लड़की है, फिर क्यों कोयला चुराती है? लाची ने बड़ी लजाजत से कहा, स्टेशन मास्टर साहब अब नहीं चुराऊंगी, अब बस माफ कर दो। मगर ऐसा काम क्यों करती है? तुम तो जानते हो स्टेशन मास्टर साहब, सारा इलाका जानता है। वही 350 का किस्सा। हाँ, कहकर लाची ने निगाहें नीची कर ली। कितने रुपए अदा कर चुकी है? 80। लाची सर से पांव तक ऐसी शर्माई महजूब निदामत में डूबी खड़ी थी कि रसिकलाल को उस पर बेहद प्यार आया। उसने अपने मेज के दराज को 2-1 बार खोला, बंद किया, खोला, फिर बंद किया। आखिर में खोल के कुछ नोट निकाले और उन्हें लाची के हाथ में देकर बोला, ले जा इन्हें और दे दे उस खबीस को। लाची जैसे शुक्र के बार से दब गई, झुक गई। उसने झुककर रसिकलाल के घुटनों को हाथ लगाया और जूं ही ऊपर उठी वो रसिकलाल की बाहों में थी। रसिकलाल के दुबले पतले भूखे तरसे चेहरे पर उसने उस जज्बे की लर्जिश देखी। वही रंग, वही अदा, वही लालच। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रसिकलाल के भेस में माधव लाल कच्चे पपीते को देख रही है। वो लिजलिजी सी चिकनाहट, वही रेंगते हुए कीड़े की कुलबुलाहट। लाची के दिल में वही कराहत आमेज नफरत पैदा हुई। रसिकलाल उसके चेहरे की तरफ झुका ही था कि लाची ने तड़प कर एक ही झटके में रसिकलाल की बाहों से अपने आप को अलग कर लिया और उसके गाल पर एक जोर का तमाचा दिया कि रसिकलाल कुर्सी से ठोकर खाता हुआ जमीन पर जा गिरा और जमीन पर गिरते ही चिल्लाकर शोर मचाने लगा, पुलिस पुलिस। दत्तू फौरन दौड़ता हुआ अंदर आया। उसे देखकर रसिकलाल की दिलेरी औद कर आई। वो जमीन से उठा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, इस हरामजादी को हवालात में ले जाकर बंद कर दो, ये कमबख्त कोयला चुराती है हमारे यार्ड से। लाची फौरन तुर्की ब तुर्की बोली, और तुम जो कुछ चुरा रहे थे मुझसे, बुढ़े झड़ूस, शर्म नहीं आती? तेरी बेटी के बराबर हूँ। ले जाओ, इसे ले जाओ और हवालात में बंद कर दो।
रसिक लाल आग बगूला होके बोला। लाची आगे बढ़ के अपने बाजू चलाते हुए बोली, ठहर तो जा, अभी तेरी खाल नोच लूंगी। लेकिन दत्तू लाची को घसीटकर कमरे से बाहर ले गया और उसने लाची को स्टेशन के हवालात में बंद कर दिया।